سنی دعوت اسلامی کی دعوت ہر سو عام کرے، سنت کو گھر گھر پھیلائے، تبلیغ اسلام کرے، سنت کو گھر گھر پھیلائے، تبلیغ اسلام کرے۔ سنی دعوت اسلامی کے بعد یہ نور میں ہونے والے سنی اجتماع کے لیے گھر سے نکلو، دین کے لیے گھر سے نکلنا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کرناٹک کا 18واں عظیم الشان روح پرور سالانہ سنی اجتماع انشاءاللہ 21 اور 22 فروری 2015 کو وادی نور عیدگاہ میدان اولڈ ہبلی میں ہونے جا رہا ہے۔ 21 فروری بروز سنیچر صبح 10 بجے سے رات 8 بجے تک صرف خواتین کے لیے، 22 فروری بروز اتوار صبح 11 بجے سے رات 11 بجے تک صرف مردوں کے لیے۔ اس اجتماع میں آپ سے خطاب کے لیے امیر سنی دعوت اسلامی داعی کبیر حافظ قاری مولانا محمد شاکر علی نوری، بلبل باغ مدینہ قاری الحاج محمد رضوان خان صاحب قبلہ، سید امین القادری صاحب قبلہ اور عالم با عمل پیر طریقت رہبر شریعت عالی جناب تنویر ہاشمی صاحب قبلہ اور دیگر علماء اہل سنت اور مبلغین تشریف لا رہی ہیں۔ آپ تمام سے قصیر تعداد میں شرکت کے ساتھ دعوت کو عام کرنے کی درخواست ہے۔ دوسروں کو دعوت دیں، دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں، کثیر تعداد میں وادی نور پہنچیں اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کو یہ جان کر بڑی مسرت ہوگی، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا 18واں سالانہ 2 روزہ عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع انشاءاللہ 21 اور 22 فروری 2015 کو بمقام وادی نور عیدگاہ میدان اولڈ ہبلی کاروا روڈ میں ہونے جا رہا ہے۔ 21 فروری بروز سنیچر صبح 10 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک صرف خواتین کے لیے، 22 فروری بروز اتوار صبح 11 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک مرد حضرات کے لیے۔ اس اجتماع میں آپ سے خطاب کے لیے امیر سنی دعوت اسلامی داعی کبیر عطائے حضور مفتی اعظم ہند حضرت حافظ قاری محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ، پیر طریقت رہبر شریعت بلے گلزار ہاشمیت حضرت علامہ مولانا سید تنویر ہاشمی صاحب قبلہ بیجاپور، بلبل باغ مدینہ حضرت قاری رضوان صاحب قبلہ ممبئی، عالم با عمل حضرت علامہ مولانا مفتی اسلم صاحب مصباحی قبلہ بنگلور، اولاد غوث اعظم نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ مالیگاؤں اور دیگر علماء اہل سنت اور مبلغین سنی دعوت اسلامی تشریف لا رہی ہیں۔ لہذا آپ تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح کثیر سے کثیر تعداد میں تشریف لا کر اپنی دنیا و آخرت کو سنواریں اور اس اجتماع کی دعوت کو عام سے عام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کے لیے گھر سے نکلو، آج ضرورت ہے، نبی کی محبت میں قربانی دینے کی ضرورت ہے، وقت نکالو، گھر سے نکلو، دوست احباب کو لے کر نکلو، بھائیوں کو لے کر کے نکلو، کثیر تعداد میں پہنچو۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ کسی کے 1-2 دن کے کاروبار رکھنے کی وجہ سے اس کے مال کے اندر کوئی خسارہ ہو جائے گا، اس کے گھر میں فاقہ ہو جائے گا۔ شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جو دکان بند رکھے تو فاقے کی نوبت آ جائے۔ نہیں، مسلمانوں
मुसलमानों सुनो, आज दुनिया देखना चाहती है कि नबी की मोहब्बत में आदमी क्या कर सकता है। आप दीन सीखने के लिए वादिए नूर आओ, घर से निकलोगे, घर वाले भी देख रहे होंगे, मदीने वाले भी देख रहे होंगे। निकलने वाला निकला है, वादिए नूर बिजनेस के लिए नहीं निकला, वादिए नूर दुनिया कमाने नहीं निकला, मेरा दीन सीखने निकला है, मेरी बातें सुनने के लिए निकला है। सोचो, अगर तुम घर से निकले, मदीने वाले राजी होंगे, दुनिया भी समझ जाएगी और आखिरत भी समझ जाएगी। कसीर तादाद में आए, दूसरों को दावत दें, दूसरों तक ये पैगाम पहुंचाएं, कसीर तादाद में वादिए नूर पहुंचे और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल ही दिल में मैं सोचता रहा कि इस सफर के दौरान हुजूर के मिलाद पाक का चांद उफक के आसमान पे नजर आ रहा है। ये रबीउल अव्वल शरीफ का चांद इस बात की गवाही दे रहा है कि सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा मदीने की बारगाह में कबूल हो गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज पूरी दुनिया गुनाहों के समंदर में डूबी हुई है। इस वक्त पूरी दुनिया में कोई जमीन ऐसी नहीं है, कोई इलाका ऐसा नहीं है, कोई शहर ऐसा नहीं है, कोई गांव ऐसा नहीं है, कोई खित्ता ऐसा नहीं है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा, अगर मैं ये कहूँ तो कोई मुबालगा ना होगा कि कोई गली और कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ गुनाह ना होता हो, जहाँ बुराइयां ना होती हो, जहाँ बेहयाइयां ना होती हो। लेकिन इन गुनाहों के सद्देबाब के लिए, इन गुनाहों को रोकने के लिए और इन बुराइयों के खात्मे के लिए दुनिया का आज हर दानिशवर कोशिश कर रहा है, दुनिया का हर शरीफुल नफ्स इंसान कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से बुराइयां रुकती भी चली जाए। लेकिन आलम ये है, सिचुएशन ये है, पोजीशन ये है कि जिस कदर बुराइयों को रोकने की कोशिश की जा रही है, जिस कदर बेहयाइयों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, आए दिन गुनाह बढ़ता जा रहा है, आए दिन बेहयाइयां बढ़ती जा रही है, आए दिन गुनाह एक नई सूरत लेकर आ रहा है, आए दिन गुनाह एक नई शक्ल लेकर आ रहा है, आए दिन गुनाह ईमान कुल बनकर आ रहा है, आए दिन गुनाह एक नया चेहरा लेकर आ रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जहां आज के दौर में कसीर तादाद में गुनाह फैलते जा रहे हैं, हजारों बुराइयां फैलती जा रही हैं, वहीं आज के दौर में सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों के ईमान को कमजोर करने की नापाक कोशिशें की जा रही है। सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों के सीनों से मोहब्बत रसूल के चिराग को मिटाने का नापाक मनसूबा किया जा रहा है। तो आज के दौर में जरूरत इस बात की है कि हम अपने आमाल को दुरुस्त कर लें। आज के दौर में जरूरत इस बात की है कि हम अपने अकायद को मजबूत से मजबूत तर कर लें और हमारे अकायद को मजबूत करने के लिए, हमारे अकायद को संवारने के लिए, हमारे आमाल को संवारने के लिए, हमें पक्का मुत्तकी और परहेजगार बनाने के लिए, हमें नमाजी बनाने के लिए, हमें आशिक़ मुस्तफा बनाने के लिए, हमारे क़ुल्ब व अज़हान को मुनव्वर मुजल्ला मुसफ़्फ़ा करने के लिए, हमारे सीनों को मोहब्बत रसूल का मदीना बनाने के लिए और हमें रसूल के नाम वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से और उनकी कदमों से करीब करने के लिए सरज़मीन हुबली में आलिमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से 2 रोज़ा अज़ीमुश्शान रूह परवर तरबियती इज्तिमा मुनक़िद होने जा रहा है। 21 फरवरी को बरोज़ शनीचर को सुबह 11 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक सिर्फ औरतों के लिए रखा गया है और 22 फरवरी को इतवार को सुबह 11 से लेकर रात 11 तक के सिर्फ मर्द हज़रात के लिए रखा गया है, जहां पर बड़े बड़े उलमा तशरीफ ला रहे हैं, बड़े बड़े मुफ्तियान किराम तशरीफ लाने वाले हैं, बड़े बड़े मुफ्तियान किराम, उलमाए किराम, मशाइख इज़ाम और मुबल्लिगीन इज़ाम तशरीफ ला रहे हैं, जो अपने नूरानी बयानात से, अपने नूरानी खिताबात से सामईन को नवाजने वाले हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप कसीर तादाद में तशरीफ लाएं और ये आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का रूह परवर अज़ीमुश्शान 18वां सालाना सुन्नी इज्तिमा हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, जो वासिल आगोश काबा भी है, जो दाई कबीर भी है और अल्लाहु अकबर, जिन्होंने हजारों लोगों को जो है रायनास बना करके खड़ा कर दिया है, जिन्होंने कई लोगों को मुसलमान भी किया है। अल्लाहु अकबर, दीन के दर्जे पूरी दुनिया में है, ये पूरा बहुत अच्छा मिशन लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कसीर तादाद में खुद भी तशरीफ लाएं, जो इस चीज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि रसूलुल्लाह के गुलाम को रसूल की बारगाह से करीब कर रहे हैं, रसूलुल्लाह के गुलाम को रसूल के कदमों से करीब कर रहे हैं, इसलिए कि वो जानते हैं कि हज़रत इमाम मालिक से किसी ने पूछा था, क्या हुजूर अगर दावत का काम किया जाए, दावत का काम किया जाए, दीन की तबलीग की जाए, उसके बावजूद लोग गुनाह से ना बचे, उसके बावजूद लोग गुनाहों से इज्तिनाब ना करें, ऐसे माहौल में हमें क्या करना चाहिए, ऐसे संगीन हालात में हमें क्या करना चाहिए। हज़रत
रसूल के कदमों से करीब करना है, रसूल के गुलामों को रसूल की बारगाह से करीब करना है। और मैं बड़े फख्र के साथ कहने में ये झिझक महसूस नहीं करूंगा कि मेरे अमीर वासिल आरश काबा दाई कबीर अशाह अमीर सुन्नी दावत इस्लामी मौलाना शाकिर अली नूरी मद्दजिल्लाहुल आलिम नूरानी यही काम कर रहे हैं कि पूरे दुनिया के मुसलमानों को किसी दुनिया के बादशाह से नहीं बल्कि मदीने के ताजदार की बारगाह से करीब कर रहे हैं, उनकी बारगाह से जोड़ रहे हैं, उनके कदमों से करीब कर रहे हैं। तो ए लोगों, अगर आप अपने ईमान को संभालना चाहते हो, अगर आप अपनी जिंदगी में इनकलाब बर्पा करना चाहते हो, अपने सीने को मोहब्बत रसूल का मदीना बनाना चाहते हो, तो कसीर से कसीर तादाद में 21 फरवरी उस शनीचर को वादी नूर का मैदान सरजमीन हुबली में जो इज्तिमा मुनक्किद होने जा रहा है, अपनी माओं को भेजे, अपनी बहनों को भेजे, अपने करीबी रिश्तेदारों को भेजे, और आपके लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ गाड़ियों का भी इंतजाम किया जाएगा। और खुद अपने ईमान को जगमगाने के लिए, अपने सीने में मोहब्बत रसूल को पैदा करने के लिए और अपने सीने को मोहब्बत रसूल का मदीना बनाने के लिए 22 फरवरी को आप खुद भी कसीर तादाद में तशरीफ लाएं, दूसरों तक ये दावत को पहुंचाएं और दूसरों को दावत दीन पेश करें। इसलिए कि हो सकता है आपका ये दावत दीन पेश करना अल्लाह को पसंद आ जाए और अल्लाह तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ करके तुम्हें जन्नत अता फरमाए और तुम्हें तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए। मैं इतनी बातों पर अपने कलिमात को खत्म करता हूँ। मैं फिर से आपसे आखिर में गुजारिश करूंगा, 21 तारीख को यानी 21 फरवरी बुरुज शनीचर को औरतों का इज्तिमा होगा, 22 फरवरी बुरुज इतवार को मर्द हज़रात का इज्तिमा होगा, जिसमें मुख्तलिफ इलाके से मुबल्लिगीन और उलमा किराम तशरीफ लाएंगे, अपनी नूरानी बयानात से आप तमाम ही लोगों को महफूज फरमाएंगे और सामईन के दिलों को मुनव्वर मुजल्ला करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, खुद भी कसीर तादाद में तशरीफ लाए और दूसरों को भी दावत दीन पेश करने की कोशिश करें। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। माँ वो है जिसकी मिसाल नहीं, माँ वो है जिसकी मिस्ल नहीं। एक बात बढ़ करके कहकर उन्वान खत्म कर दूं, दूसरा खुदा नहीं हो सकता। माँ की फजीलत पर इससे बड़ा जुमला मेरे पास है नहीं। जिस तरह दूसरा खुदा नहीं हो सकता, उस तरह दूसरी माँ नहीं हो सकती। बस खत्म। बाप की दूसरी बीवी को दूसरी मां कहते हैं, मैं उसकी अजमत पे कुर्बान। लेकिन एक बात बता दूं, मां मां होती है। एक बच्चे की मां मर गई, इंतकाल हो गया। आप में से भी कुछ ऐसे होंगे जिनके सर से मां का साया उठ गया होगा। जब मां का साया उठता है ना, तो कलीम को भी कहा जाता है, मूसा अलैहि सलाम को, मूसा जरा संभल कर आना। मां का साया उठता है तो मूसा को भी कहा जाता है, जरा संभल कर आना। कहते हैं कलीम अल्लाह पहली बार तो नहीं आता, आज संभलने का हुक्म क्यों है? कहा मूसा कल तक तेरी मां जिंदा थी ना, तू निकलता था तो आंचल पसार के दुआ करती थी, अल्लाह मेरे मूसा की हिफाजत फरमा। अब मां चली गई है दुनिया से, तेरे पीछे कोई दुआ करने वाला नहीं है, कलीम जरा संभल कर आना। मां ये है। एक बच्चे की मां का इंतकाल हो गया, मां मर गई, बाप ने दूसरी बीवी की। एक दिन छोटा सा बच्चा मासूमियत के साथ बाप के सामने बैठा है, दागे यतीमी लेकर। बाप ने पूछा, बेटा तेरी पहली मां अच्छी थी कि दूसरी? मां एक ही होती, कहने को दूसरी है लेकिन मां एक ही होती, ममता एक ही है, दिल एक ही है, प्यार एक ही है। पेट में रखने वाली वही हकीकी मां है, बाकी सैकड़ों माएं बन सकती है। बेटे तेरी पहली मां अच्छी थी या दूसरी मां? बेटे ने कहा, अब्बा मेरी पहली मां झूठी थी। जो मां मर गई ना, तवज्जो से सुन ले जिनके घरों में माएं हैं, जो पहली मां मर गई ना, जो हकीकी थी, वो झूठी थी और मेरी दूसरी मां सच्ची है। बाप ने पूछा, कैसे बेटा? कहा, अब्बा जब स्कूल नहीं जाता था ना तो कहती थी, स्कूल नहीं जाएगा ना तो मारूंगी, खाना नहीं दूंगी, शरारत करेगा ना भान दूंगी, खाना नहीं दूंगी। लेकिन वो मेरी मां झूठी थी, शरारत करने पे कहती थी भान दूंगी, खाना नहीं दूंगी, लेकिन मैं इतनी शरारत करके आता तो बांधती नहीं थी, भूखा नहीं रखती थी,
सर पे हाथ फेर फेर कर अपने हाथ से खिलाती थी। बच्चा उसे क्या समझ है, तो कहता है वो झूठ बोलती थी, बांधने के लिए कहती थी, बांधती नहीं थी। सर पे हाथ फिरा फिरा के खिलाती थी, कहती थी खाना नहीं दूंगी, फिर भी खिलाती थी। जब मुंह फेर लेता था बस पेट भर गया, तो कहती थी मेरे बेटे 2 लुक़मे और खा ले, एक और ले ले, मेरे बच्चे और ले ले। तो वो मेरी मां सच झूठी थी, कहती थी बांधूंगी, मारूंगी, खाना नहीं दूंगी, लेकिन न कभी मारा, न कभी बांधा, न कभी खाने से रोका, बल्कि लाड़ लाड़ से खिला। दूसरी मां बड़ी सच्ची है, जब कहती है ना मारूंगी, बहुत मारती। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद। दूसरी मां बड़ी सच्ची है, कहती है ना मारूंगी तो बहुत मारती है, कहती है ना खाना नहीं दूंगी तो फिर दिन दिन भर भूखा रहता हूं, खाना नहीं देती। अब्बा दोनों माओं में फर्क यही है, वो झूठी थी, ये सच्ची है, वो इंतकाल कर गई, ये मौजूद है। उस बच्चे को क्या पता कि वो झूठी नहीं थी, उसकी ममता उसे मजबूर करती थी। उसके हाथ बांधने से पहले खुद बंध जाते थे, उसके हाथ मारने से पहले खुद जंजीर पर जाती थी। तो जैसे खुदा दूसरा नहीं हो सकता, वैसे कायनात में दूसरी मां नहीं हो सकती। जैसे खुदा दूसरा नहीं हो सकता, वैसे कायनात में दूसरा बाप नहीं हो सकता। ये ममता जुदा है, इसकी कोई मिसाल नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने जहां अपनी वहदानियत का जिक्र किया, वहीं पर माँ बाप का भी तस्करा किया। बल अल्लाह खुदा होने में वादा शरीक है, माँ बाप होने में वादा दामन पर लगे हुए गुनाहों के धब्बों को मिटाने के लिए इज्तिमा है। ये एक नए दौर के आगाज के लिए इज्तिमा है, एक नए इनकलाब के लिए इज्तिमा है, कि जिस इज्तिमा के बाद कल जो सूरज तुलू होगा, हमारी जिंदगी में करार का सूरज तुलू होने वाला है। रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, रसूल आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी मसलक आला हजरत का तर्जुमान मुसलसल 20 सालों से दीन सुन्नियत की खिदमत में गामज़न है। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाह मुआशरा, यही सुन्नी दावत इस्लामी का मकसद है। आइए हम भी सुन्नी दावत इस्लामी की दावत पर लब्बैक कहते हुए चलें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कभी मुझ पर इज़्तिराबी कैफियत तारी होती, मैं नमाज पढ़ लेता, मुझे सुकून मिल जाता था, मैं नमाज पढ़ लेता, मुझे इत्मीनान मिल जाता। आप अंदाजा लगाइए, नमाज सुकून का जरिया है, नमाज रंजो गम दूर होने का जरिया है, नमाज इंसान की परेशानी का इलाज है, नमाज इंसान को खुदा के कुर्ब की सुन्नी दावत इस्लामी की दावत पर लब्बैक कहते हुए उमड़ते हुए सैलाब की तरह